Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. I am very much fine. Alhamdulillah. So the topic that we discussed in yesterday's video is the HTML comments. So we discussed what are comments, why we use comments, and how we write comments in HTML. So in today's lecture, we are going to start a new topic, that is HTML tables. We will discuss what are tables, why we use tables, and how we create the tables in HTML. So let's go and read. So let's start the PPT slides. Okay. So first of all, we will discuss what are tables and why we use tables. As you can see in your window, I'm explaining these lines. Okay, so tables are used to organize the data that is too detailed or too complicated, the data that is taking a lot of time of the reader to read that data, the data that is not easy to understand, not easy to read. So that's why we use tables to organize that data in rows and columns. We organize that data in such a way so that it would not take a lot of times of the reader, a lot of attention of the reader, and that's why we use tables. So I hope आपको समझ आ गया होगा what are tables and why we use tables. So let's go further. Now we are talking about the HTML tables. HTML tables allow the web developers to arrange the data into rows and columns, same as HTML tables does the same things. Okay, so let's go further. Now this is the example of the HTML table. It is like an HTML table, or the table looks like. Here are we have the rows and the columns. We created a table. We create a table and we have rows and columns in a table. Okay. So this is the header part in which we have written all the headings of the table content. For example, company is the heading that is describing the data of all the company names. Contact is an heading that is describing the data of the contact persons, and country is the heading that is describe the names of all the countries. ओके सो इस तरीके के टेबल्स वी क्रिएट इन द HTML. ओके, हम देखते हैं किस तरीके से हम इन टेबल्स को क्रिएट करेंगे. व्हाट आर द टैग्स दैट वी विल यूज टू क्रिएट दीज टैग्स. सो नाउ वी विल डिफाइन an HTML table. So the tag that we will use to create an HTML table is the table tag. So it is the tag that we will use to create the HTML tables. ठीक है, टेबल टैग को यूज़ करके हम लोग HTML का टेबल क्रिएट करेंगे. टेबल का जो टैग है HTML का, ये हमारे पास इसके ओपनिंग टैग भी है, एंड एज वेल एज इट हैव द क्लोजिंग टैग, एंड दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज टैग्स दैट डोंट हैव द क्लोजिंग टैग. ओके, इट हैज़ द क्लोजिंग टैग. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल का टैग यूज़ करके एक टेबल क्रिएट कर लेंगे. बट इन दैट टेबल देयर इज़ नथिंग, नो एनी रोज एंड नो एनी कॉलम, नो एनी डेटा. ओके, सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो द टैग दैट वी विल यूज़ टू क्रिएट द रोज in the table is the tr tag. Tr tag also has the opening tag as well as it also have the closing tag. So tr tag के थ्रू हम लोग जो है रोज और कॉलम्स, रोज क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो हम लोग इसके ऊपर आते हैं. आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास ये एक टेबल टैग के थ्रू एक टेबल क्रिएट करेंगे. उसके बाद सबसे पहले हम इस रो को क्रिएट करेंगे जो कि tr टैग के थ्रू करेंगे. अब हमारे पास ये हेडर पोर्शन है. हेडर पोर्शन में ये हेडिंग्स है, तो हेडिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए द टैग दैट वी यूज इज द th टैग. ठीक है, तो टी टैग को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग. ईच टेबल हेडर इज डिफाइंड विद द th टैग. जो टेबल की जो हेडर पोर्शन है वो डिफाइंड होता है th टैग के थ्रू. ठीक है, सबसे पहले टेबल क्रिएट करवाया, उसके बाद एक रो क्रिएट करी. रो के अंदर हमने हेडिंग्स जो है हम लोग th टैग के थ्रू देंगे. अब हमें क्या क्रिएट करनी है, वापस से एक रो क्रिएट करेंगे जो कि है tr टैग के थ्रू करेंगे. फिर उसके बाद हम लोग कॉलम्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉलम्स के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो होगा td टैग. कॉलम्स कह लो या जो टेबल का डेटा कह लो, तो उसके लिए td टैग हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, ईच टेबल डेटा सेल इज डिफाइंड विद द td टैग. ओके, अंडरस्टैंड. So now by default the tags in the th elements are bold and centered, and by default the tags in td elements are regular and left aligned. As you can see here, the data in the th टैग आर बोल्ड एंड सेंटर्ड. ठीक है, तो ये बोल्ड है और सेंटर्ड है. ठीक है, सो ये हेडिंग्स होती हैं. हेडिंग्स में और जो कंटेंट होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए, तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट जो th टैग के अंदर डेटा होता है वो बोल्ड होता है और वो जो है सेंटर्ड होता है. इसके अलावा जो डेटा होता है हमारे पास td के अंदर, टेबल डेटा टैग के अंदर, वो हमारे पास रेगुलर होता है और बोल्ड नहीं होता है, रेगुलर होता है. इसके अलावा वो लेफ़्ट अलाइन होता है. एज यू कैन सी हेयर हमारे पास जो टेबल का डेटा है वो लेफ़्ट अलाइंड है. ओके,
Understand? So now we will discuss how what we use these tags to create this table. Okay, so हमने ये डिस्कस कर लिया है. ओके, नाउ अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टेबल है इसमें कोई बॉर्डर हमने यूज़ नहीं किया, बट वी कैन गिव अ बॉर्डर टू आवर टेबल. हाउ वी विल गिव द बॉर्डर टू आवर टेबल? वी विल यूज एन एट्रीब्यूट. एज आई टोल्ड यू बिफोर, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट्स आर लाइक एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हम हर एलिमेंट के लिए देते हैं. हर एलिमेंट्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स देते हैं. एट्रीब्यूट्स करती क्या है? व्हाट एट्रीब्यूट्स डज? एट्रीब्यूट्स इम्प्लीमेंट द एडिशनल फंक्शनैलिटी टू अवर HTML एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हेयर द HTML एलिमेंट वी यूज़ हेयर इज़ द टेबल. सो टेबल में क्या कर रहे हैं हम लोग? एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे हैं बॉर्डर का. अब बॉर्डर क्या कर रहा है? हमारा जो टेबल है उसको बॉर्डर दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी राइट हेयर बॉर्डर इक्वल्स टू 1. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हमारा बॉर्डर है उसके जो है विड्थ होनी चाहिए वो 1, मतलब इतनी विड्थ है. फॉर एग्जांपल इसको हम लोग 2 कर सकते हैं, इसको हम लोग 3 कर सकते हैं. तो जितनी हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे उसकी विड्थ जो होगी, बॉर्डर जो होगा, बॉर्डर की जो विड्थ होगी वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेबल्स को, HTML के जो टेबल्स होते हैं वो बॉर्डर हम लोग देते हैं. इस तरीके से हम लोग HTML में टेबल्स क्रिएट करते हैं. दीज आर द टैग्स दैट वी यूज टू क्रिएट द टेबल्स इन HTML. ओके, सो दिस इज द टेबल लुक्स लाइक. सो लेट्स ओपन द नोटपैड प्लस प्लस एंड क्रिएट करते हैं एक टेबल. एंड देन आपको प्रैक्टिकली आइडिया हो जाएगा कि हाउ वी क्रिएट द टेबल्स इन HTML. ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं. So now we are creating a table in HTML. As you can see here, I have given a title to my web page is the table because we are creating the HTML table. So that's why मैंने ये title दिया है. Okay, now in the body, let's come to the body part. Okay, so now we are creating a table. I told you कि हम लोग table create करने के लिए कौन सा tag use करते हैं? We use the table tag. Okay, so I am using the table tag. Okay, so it also have the closing tag, so I am writing also the closing tag of the table. ठीक है, अब सबसे पहले हमने टेबल का जो है टैग यूज़ कर लिया. उसके फ़ौरन बाद हम क्या करेंगे? एज यू कैन सी हेयर, हम इसको साथ साथ PPTs भी खोल के देख लेते हैं. सबसे पहले हमें एक रो क्रिएट करनी है. उस रो में इन हेडिंग्स को लिखना है. ठीक है, तो हेडिंग्स को लिखने के लिए TH टैग यूज़ कर रहे थे. सबसे पहले रो क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज़ कर रहे थे दैट इज़ द TR टैग. ठीक है, TR टैग के थ्रू रोज क्रिएट करेंगे. ठीक है, अब एक रो क्रिएट कर रहे हैं तो हमने एक दफ़ा TR टैग यूज़ किया. फर्स्ट रो क्रिएट हो गया. इसके अंदर अब हमारे पास टेबल हेड आएगा. तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? TH का टैग. अब हमारे पास 3 हेडिंग्स हैं तो TH का जो टैग होगा ओपनिंग और क्लोजिंग 3 टाइम्स यूज़ करेंगे. ठीक है, सो TH का ओपनिंग टैग एंड TH का क्लोजिंग टैग भी होता है. इसके अलावा इसको हम लोग कॉपी और पेस्ट कर लेंगे 3 टाइम्स. कॉपी किया और हम लोग पेस्ट कर लिया. ठीक है, सो हम लोग सेम वैसा ही टेबल क्रिएट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो लिखा है हम वो वैसे ही कर रहे हैं. ठीक है, सो कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री. ओके, सो हम यहाँ पे इसी तरीके से लिखते हैं. सबसे पहले है कंपनी एंड देन वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन वी हैव द नेम ऑफ द हेडिंग इज़ I forgot. Company, contract and country. ओके, सो इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट हम लोग ब्राउज़र में देखते हैं. ठीक है, सो ओके, डेस्कटॉप पर थी हमारी फाइल. लेट्स ओपन दिस फाइल. एज यू कैन सी हेयर बट इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ टेबल. ओके, आप यही सोच रहे होंगे. तो सबसे पहले हम इसको बॉर्डर देख लेते हैं. बॉर्डर के लिए हम क्या कर रहे थे? हम लोग बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे जो कि हम लोग टेबल के टैग के अंदर देंगे. फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ बॉर्डर का एट्रीब्यूट इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. उसके बाद जो है हम लोग इक्वल साइन देंगे एंड देन डबल कॉट्स में हम लोग जितनी विड्थ हम देना चाहते हैं हमारे टेबल को बॉर्डर की वो हम दे देंगे. लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र वंस अगैन एंड लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस. So as you can see here we have given a border. Border is given to all the rows and all the columns. ठीक है, so हमारे पास एक ही रो है, इस पे border आ गया and all the columns there is a border. Okay, so let's go to the notepad plus plus again. Now we have created our header portion. Now अब हम लोग क्या आएंगे? टेबल के डेटा की तरफ आएंगे, टेबल की बॉडी की तरफ आएंगे, उसके कंटेंट की तरफ आएंगे. so सबसे पहले वापस हमें एक रो क्रिएट करनी होगी एंड देन इस रो के अंदर 3 कॉलम्स. कॉलम्स के लिए TD का टैग था, रो के लिए TR का था. सो लेट्स गो हेयर अगेन. हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे
एंड देन हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो टी डी का टैग 3 टाइम्स यूज़ करेंगे कॉलम्स के लिए, 3 कॉलम्स क्रिएट करने के लिए टी डी। इसको क्लोज भी करेंगे साथ। ओके, तो इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है हमारे पास। ओह, ये मैंने कुछ और ही कर दिया। टी डी का टैग, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे देते हैं टेबल का डेटा। अब मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, लाइक कंपनी को ही दे देती हूँ मैं यहाँ पे PIA। इसके अलावा कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे रही हूँ अली। एंड देन यहाँ पे हम देंगे, ओके, नाउ नेम ऑफ द कंट्री आई एम गिविंग हेयर इज़ पाकिस्तान। ओके, so let's save this and open in the browser once again and see the output of this. Sorry for the voices that are coming. ओके, एज यू कैन सी हेयर हमारे पास जो डेटा है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि हमारे पास 2 रोज़ और कॉलम्स कुछ और भी आएँ। सो हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस पूरी रो को मैं जो हूँ कॉपी कर रही हूँ एंड ये यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे नेम हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग हेयर XYZ कंपनी है हमारे पास। इसके अलावा नेम जो है मैं यहाँ पे दे रही हूँ आमिर। एंड देन पाकिस्तान की जगह मैं दे रही हूँ इंडिया। ओके, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं। लेट्स सेव दिस एंड सी द आउटपुट इन द ब्राउज़र। एज यू कैन सी हेयर, सो हमारे पास ये भी आ गया है डेटा। सो एक और दफ़ा हम लोग इसकी एक और रो क्रिएट कर लेते हैं। सो सेम TR का टैग और TD का टैग यूज़ होगा। ओके, मैं पेस्ट कर रही हूँ सेम। अब कंपनी का नाम मैं दे रही हूँ फॉर एग्जांपल मलेशिया कंपनी। ओके, सो नाम यहाँ पर मैं दे रही हूँ कायनात। एंड देन यहाँ पर मैं दे रही हूँ, कौन सा कंट्री देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ओके, so let's save this and open in the browser once again and see the output. So let's reload it and as you can see here, this is the output, this is the table that we have created. सो इस तरीके से हम लोग HTML में टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल का टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा रोज़ क्रिएट करने के लिए TR का टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेटा कॉलम्स क्रिएट करने के लिए TD का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर हमें अपने टेबल में बॉर्डर देना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉर्डर की जो विड्थ है वो बढ़ाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 दिया है, मैं जो हूँ 3 करना चाहती हूँ, तो लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र वंस अगेन एंड सी द आउटपुट। ओके, सो लेट्स रिलोड इट। ओके, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉर्डर है उसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है जो कि हम लोग टेबल में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द विड्थ एट्रीब्यूट। अगर मैं विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करती हूँ तो हमारे पास टेबल की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। किस तरीके से, लेट्स सी दिस। ठीक है, सो किस तरीके से हमारे पास टेबल की विड्थ इंक्रीज़ होती है आप देख सकते हैं। मैं डबल कॉट्स करके 100% इसकी विड्थ दे रही हूँ। पर्सन इज़ अ यूनिट एज आई टोल्ड यू बिफोर। सो लेट्स सेव दिस अगेन एंड ओपन इन द ब्राउज़र वंस अगेन एंड लेट्स सी इट्स आउटपुट हाउ इट लुक्स लाइक नाउ। सो एज यू कैन सी कि मैंने इसकी विड्थ 100% बनाई है, मतलब इस ये पूरी जो ब्राउज़र जो वेब पेज है पूरी उसकी विड्थ ले रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया कि हमारे पास टेबल्स क्या होते हैं, हम लोग टेबल्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, वाई वी यूज़ टेबल्स एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट द टेबल्स इन HTML। वी आल्सो सी वन और टू ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल्स कि हम लोग विड्थ जो है हमारे टेबल की किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट देखा था। ठीक है, सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट वी कवर्ड येस्टरडे, वी कवर्ड टुडे ऑफ द टेबल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फर्दर भी हम लोग टेबल का कंटिन्यू करेंगे बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू कवर और रिलेटेड टू द टेबल्स लेक्चर।
So I'm stopping the recording here. Allah Hafiz, thank for watching my channel and kindly सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखा करें देन तभी आपको हर चीज़ क्लियरली अंडरस्टैंड हो सकेगी एंड अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा. बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can comment down in the comment section. I'll try to solve all of your queries. Okay, so thanks for watching, thanks for subscribing my channel if you have subscribed it. So Allah Hafiz, I'm stopping the recording here.